یہ کیا مسجد سے مائک پھینکے گا، یہ کیا ہمیں ہندوستان سے اکھاڑ کے پھینکے گا. ان کے باپ دادا ان سے زیادہ پڑھے تھے، ان کے باپ دادا ان سے زیادہ طاقتور تھے، ان کے باپ دادا فراٹے سے انگریزی بولتا تھا، ان کا باپ دادا انگریزوں کی حمایت اس کو حاصل تھی. جن کا دادا مضبوط تھا، جن کا باپ طاقتور تھا، جن کے پاس علم بھی تھا، جن کے پاس فورس بھی تھی، جن کے پاس طاقت بھی تھی. ان لچوں کے پاس نہ علم ہے، ان لفنگوں کے پاس نہ اخلاق ہے، ان لفنگوں کے پاس صرف بکواس ہے. یہ بکواس کر کے اسلام کی بڑھتی ہوئی کشتی کو روکنا چاہتا ہے. ان کا کام ہی ہے یہ کرتے رہنا. اگر میرا وہ بچہ جو نرفس ہو رہا ہے، جو ڈس اپوائنٹمنٹ کا شکار ہو رہا ہے، جو مایوسیت کی کیچڑ میں لطپت ہو رہا ہے، اس کے لیے میرا پیغام ہے تمہیں ڈرنا نہیں چاہیے ان لچوں لفنگوں سے. تمہیں ڈرنا چاہیے. تیری مسجد اگر ویران ہے اس سے تم کو ڈرنا چاہیے. تیرا مدرسہ اجڑا ہوا ہے اس سے تم کو ڈرنا چاہیے. نماز فرض ہوئی تھی 15 سال میں، آج تیری عمر ہے 60 سال، تمہارے ذمے 35-40 سال کی نماز قضا ہے، اس سے ڈرنا چاہیے. تمہارا حج مؤخر ہو رہا ہے، اس سے ڈرنا چاہیے. پھر تو زکات مال کی قاعدے سے نہیں نکالتا ہے، اس سے ڈرنا چاہیے. یعنی اپنی بدعملی سے ڈر. اسلام کے دشمنوں کی بکواس سے مت ڈرا کر. اسلام کا محافظ اللہ ہے، اسلام کمزور نہیں ہے. اسلام کا محافظ اللہ ہے، اسلام کا محافظ رحمت دو عالم رسول اللہ ہے. مصطفیٰ کا پسندیدہ دین اسلام ہے. اس تحریک کو لانے والے مصطفیٰ ہے. اللہ اس کا محافظ ہے. 1,500 سال کی تاریخ بتاتی ہے کہ جب دشمنوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا ہے. پہلا دن جس دن آپ کی بیوی نے کلمہ پڑھا تھا اور آج کا دن 150 کروڑ محمدی فوج اپنے نام کے ساتھ لفظ محمد کو جوڑ کے بتاتا ہے ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں. کہاں 150 کروڑ. یہ حالات بتاتے ہیں کہ تم نروس ہونے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے. 1000 دشمنی بڑھنے دے، دشمنی بڑھتی جائے گی. یہ 150 کروڑ 200 کروڑ کی تعداد میں بدلتا چلا جائے گا. دشمنی بڑھتی جائے گی، اسلام مضبوط ہوتا چلا جائے گا. وہ تحریک اسلام ہے جو مضبوط کمزور ہونے نہیں آیا ہے. یہ ایک مضبوط مذہب، مضبوط بنیاد پہ کھڑا ہوا مذہب. ہاں میں لچا لفنگا ہوں، میں تباہ ہو جاؤں گا، میں زناکار ہوں، میری آنکھ کمزور ہو گئی، میں شرابی ہوں، میں جوا کھیلتا ہوں، میرا لباس کافروں جیسا ہے، میری شادی بیاہ کافروں جیسی ہے، میری منگنی، میرا کارڈ چھپانا، بارات کا لانا، پنڈال چھپانا، میری ساری گاہی کمائی کافروں کی نقل میں جا رہی ہے. سنتیں ترس رہی ہیں، کراہ رہی ہیں. سادگی جو ہمارے ایمان کا حصہ تھا، سادگی جو ہمارے کلچر کا حصہ تھا، ہم نے فلمی شادی رچائی. ہم نے صرف دنیا کو کافروں کا مکان کا مقابلہ کیا، ہم نے گاڑی کا مقابلہ کیا. میرا بچہ ڈی ایم بن جائے گا تو ہم کو عزت مل جائے گی، میرا سارا بچہ ایم ایل اے بن جائے گا تو عزت مل جائے گی، ہمارا اپنا آدمی ایم پی بن جائے گا تو عزت مل جائے گی، ہمارا اپنا آدمی میرے من کا آدمی مکھ منتری بن جائے گا، ہماری عزت بن جائے گی، ہماری عزت بڑھ جائے گی. ایسا نہیں ہوگا. جس حال میں ہم ہیں، نہ میرے گھر میں اسلام ہے، نہ میرے لباس میں اسلام ہے، نہ میری شکل و صورت میں اسلام ہے، نہ میری شادی بیاہ میں اسلام ہے، نہ عقیقہ ختنہ منگنی میں اسلام ہے. صرف دل میں اسلام ہے. بظاہر سارا کام کافروں جیسا. یعنی میری ماں بہنوں کا بے پردہ پھرنا، شادی کے موقع پہ بے پردگی کا دھمال مچانا، اس قدر سج دھج کر ننگے سر اور نیم برہنہ ہو کے جانا جیسے کوئی طوائف ہیں سج دھج کر کراہت کے انتظار میں اپنے کوٹھے سے باہر نکلتی ہیں. یہی ہے اسلام، یہی ہے فاطمہ الزہرا کی سیرت. ایک شخص نے نقاب کے خلاف کچھ بولا تو سارا ہندوستان چلا رہا ہے کہ نہیں نقاب پہن کے میری بیٹی جائے گی. ایک بیٹی نقاب پہن کے گئی، چلائی تو سارا ہندوستان سر اٹھا کے کہتا ہے وہ شیرنی ہے، وہ بہادر ہے، وہ یہ ہے، وہ ہے. ایک بیٹی کے نقاب سے تجھ کو کیا ملے گا؟ ایک تو ٹیمپرورلی، وہ تو اکیزنلی، وہ تو ایک اتفاقی امر تھا جو ایسا ہو گیا. ورنہ کافروں کا بولنا کہ نقاب پہن کے آگے میرے اسکول کا ماحول خراب مت کرنا، ورنہ تیری 99% بیٹیاں بے نقاب رہتی ہیں. وہ تمہارے جلسے میں بے پردگی، تمہارے عرس میں بے پردگی، تمہاری شادی میں بے پردگی. تمہارے پاس پیسہ بڑھتا ہے، تیری بیٹیاں جینس اور ٹی شرٹ پہن کے کالج جا رہی ہیں، ٹیوشن پڑھنے جا رہی ہیں، کوچنگ سینٹر جا رہی ہیں. بازاروں میں، مارکیٹ میں تیری مائیں بہنیں بیٹیاں بے پردہ لباس پہن کر، بے پردہ ہو کر مارکیٹنگ کر رہی ہے.
स्कूल में क्यों 5 औरत भूतनी और चुड़ैल बनकर निकाब पहन के आ रही है, जब 99% तेरी बेटियां बेपर्दा घूमती है? ये 5 औरतें स्कूल का माहौल क्यों खराब करती है? क्यों हिजाब पहन के आ गई, क्यों निकाब पहन के आ गई? यहाँ चिल्लाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ खामोशी से इसका जायजा लेने की जरूरत है। यह दिल किसने दिखलाया है? हमने उन काफिरों की जबान में हौसला हमने दिया है कि हमने समझा कि मौलवी का काम है दाढ़ी रखना, हमने समझा मौलवी का काम है टोपी पहनना। बहैसियत ईमानदार हमारा काम नहीं है काफिरों का मुकाबला करना, उसकी तरह क्लीन रहना, उसकी तरह लिबास पहनना। ये मौलवी का काम है मस्जिद को आबाद करना, ये मौलवी की बीवी का काम है निकाब पहनना। बाकी हमारी बेटियां ये अरबपति की बेटियां हैं, ये तो जीन्स टी शर्ट पहनकर जब पैसा बढ़ता रहे तो लिबास छोटा होता रहे। पहले पैसा था तो लिबास ढीला था, पैसा बढ़ा थोड़ा टाइट लिबास हुआ, और पैसा बढ़ा तो फिर जो पिंडली तक लिबास था वो घटके तखनों तो घुटनों तक आ गया। थोड़ा और पैसा बढ़ा तो वो लिबास शॉर्ट्स में बदल गया, थोड़ा और पैसा बढ़ा वह शॉर्ट्स बिकनी में तब्दील हो गया। यानी हमारा पैसा मुझको नंगा कर दिया। तो हम में एक काफिर में क्या फर्क रहा, हम में और एक काफिर की बेटी में क्या फर्क रहा? शादी ब्याह में वही धमाल है जो एक हिंदुओं के यहाँ है, फिर हम में एक जहन्नमी में क्या फर्क रहा? तो बेटी को नंगा पहले मैंने किया, मैंने उसका लिबास बदला, मैंने दुपट्टा छीना, मैंने उसको जीन्स से पहनाया, मैंने उसको चड्डी और बिकनी पहनाया। आज अगर कोई काफिर मेरे निकाब के खिलाफ बोल रहा है, चिल्लाता क्यों है, प्रोटेस्ट क्यों करता है, एहतजाज क्यों करता है, क्यों हल्ला करता है? ये दिन तो हमने उसको दिखलाया है। स्कूल में 90% बेटियां हमारी जीन्स टी शर्ट पहन के जाती है और 2-4 बेटियां निकाब पहन के आ रही है। वो तो बोलेगा ही अगर ये निकाब कंपलसरी होता तो तेरी सारी बेटियां निकाब पहनती। यहाँ तो 90% निकाब नहीं पहनती और तुम 5 क्यों हिजाब ओढ़ के स्कूल का माहौल खराब कर रही हो? उनका बोलना हक बजानिब है। यहाँ बुजुर्गों ने कहा है चिल्लाए बगैर अपनी तहरीक का जायजा लेना, अपने अमाल का जायजा लेना, अपने अहवाल का जायजा लेना। हकीकत का तकाजा यही है कि तुमको गुस्सा तो आएगा जरूर, लेकिन देखना कि ये दिन क्यों आया, तुमने ही उसको मौका दिया। अब खामोश तौर पर हर मुसलमान ये तय कर ले कि जो लिबास जो पर्दा फर्ज है औरतों का और हमने इस फर्ज को ताक पे रखा है, अब वो अहद कर ले कि हर 8 साल से ऊपर की मेरी बेटियां निकाब पहनेंगी, हिजाब डालेंगी, निकाब ओढ़ेंगी, न उनका सर नंगा रहेगा न चेहरा नंगा रहेगा। चाहे मदरसे में पढ़े, चाहे कॉलेज में पढ़े, चाहे यूनिवर्सिटी में पढ़े, मगर पर्दे के साथ रहेंगी। जिस दिन 100% मेरी बेटियां नकाब पहनने लगी तो अमेरिका के कॉलेज में भी नकाब को परमिशन मिलेगा, हिंदुस्तान के स्कूलों में भी नकाब को इजाजत मिलेगी। यहाँ इज्जत में इजाफा होगा। अब मरने के बाद फातिमा ज़हरा की कनीज़ी का शराब पीकर जन्नत में जगह मिल जाएगी। होना ये चाहिए था, यह दिन देखने को क्यों मिला? नहीं, सिर्फ प्रोटेस्ट करना है, एहतजाज करना है, मौका हमने दिया है। मेरा बेटा बोलता है कि मैं दाढ़ी क्यों रखूं मौलाना, दाढ़ी रखता हूं तो मेरी बेटी मेरे निकाह में आने से इनकार कर देती है। मेरे अपने लोग कहते हैं कि नहीं जंगल वाला मुझको अच्छा नहीं लगता है। मैं कहता हूं कि हाँ बात बिल्कुल सही है, ये मौका हमने दिया है। हमने क्या कहा, 98% लोगों ने दाढ़ी मुंडाया। सिर्फ मौलवी और मौलवी के संपर्क में आने वाला 2% आदमी उसने चेहरे को दाढ़ी से सजाया। चाहे चेहरा जैसा भी लगे, मगर सरकार की सुन्नत पे अमल करना है, जैसा कैसे लगे। डॉक्टरों और तबीबों ने भी कहा है कि दाढ़ी रखने से ताकत में इजाफा होता है, दाढ़ी रखने से हुस्न में इजाफा होता है। दाढ़ी मुंडाने के नुकसानात स्किन डिजीज है, जल्दी अमराज है, सेक्सुअल फोर्स कमजोर हो जाती है। लगातार 7 नस्ल तक दाढ़ी मुंडाए तो 8वीं नस्ल नामर्दों और हिजड़ों की पैदा होगी। यानी मजहबी तौर पर भी दाढ़ी लाजमी है और जिस्मानी तौर पर फिजिकली तबीबों और डॉक्टरों के नजदीक ये दाढ़ी जरूरी है। अल्लाह ने औरतों को दाढ़ी नहीं दिया, मर्दों को दी है, क्योंकि औरतों के चेहरे पे दाढ़ी के बाल या उनकी जिस्मानी कमजोरी की दलील है, उनकी निस्वानियत खत्म हो जाती है। और मर्द के दाढ़ी मुंडाने का मतलब इनके नामर्द होने की दलील है, क्योंकि औरतों के चेहरे पे दाढ़ी के बाल नहीं है। अगर उगे वो औरत निस्वानियत की सिफत से आरी होती है। मर्द के चेहरे पे दाढ़ी अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से यह दाढ़ी एक नेमत है। अगर मर्द इसको मुंडाए तो उसकी सेक्स की ताकत कमजोर हो जाती है। तो हमने इसको ताक पे रख दिया। हमने फिल्मी हीरो को देखा और चेहरा मुंडाया, हमने आज के मौजूदा यहूदो नसारा को देखा और मैंने चेहरा को मुंडाया। अब मेरे बच्चे कहते हैं दाढ़ी रखता हूं तो कॉलेज में लोग कहते हैं आतंकवादी आ गया या दहशतगर्द आ गया या टेररिस्ट आ गया। तो मैं कहता हूं 99 तेरा बच्चा दाढ़ी मूंडता है और एक बच्चा दाढ़ी रख के कॉलेज जाएगा, वो तो अजूबा लगेगा ही, वो तो लोगों को आतंकवादी लगेगा ही। क्योंकि जितने आतंकवादी का चेहरा है वह सारे आतंकवादी के चेहरे पर दाढ़ी है।
आतंकवादी का नंगा सर है, आतंकवादी का लिबास अलग जैसा होता है। अगर तेरा बेटा भी दाढ़ी रखे जाता है स्कूल में अकेला, तो लोग कहते हैं ये आतंकवादी जैसा चेहरा है। तो हमने बना दिया आतंकवादी जैसा चेहरा वाला उसको जो दाढ़ी रखे स्कूल जाता है। इस हमारे 99% बच्चे दाढ़ी मूंड के जाने लगे। क्यों? नौकरी नहीं मिलेगी, मैं आर्मी में नहीं जा पाऊंगा, मैं फोर्स में नहीं जा पाऊंगा, मेरे बच्चे मिनिस्टर नहीं बन पाएंगे, मेरे बच्चे IAS ऑफिसर नहीं बन पाएंगे। मैं कहता हूं तन्हाई में बैठ के गौर कर ले, इसी मुल्क के हिंदुस्तान में एक छोटी सी बिरादरी है सिखों की, उनका बेटा पढ़ता लिखता है, हमसे अच्छा पढ़ता लिखता है, उनका बेटा दाढ़ी और पगड़ी के साथ यानी जेल सिंह बनकर हिंदुस्तान का राष्ट्रपति बन जाता है। उनका बच्चा दाढ़ी पगड़ी के साथ पढ़ लिख कर बूटा सिंह बनकर उनका बेटा होम मिनिस्टर हिंदुस्तान का बन रहा है। उनका बेटा दाढ़ी पगड़ी के साथ ब्रिटेन में पढ़कर वहां से वापस आके रिजर्व बैंक का गवर्नर बन जाता है। उनका बेटा दाढ़ी पगड़ी के साथ हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह की सूरत में बन जाता है। उनका बेटा आर्मी चीफ यानी जल सेना, वायु सेना, थल सेना, वायु सेना का अध्यक्ष, मुश्तरका सदर, वो दाढ़ी और पगड़ी वाला सिख का बेटा बन जाता है। जो अध्यक्ष होना, जो प्रधानमंत्री से ज्यादा ताकतवर मनसब है, प्रेसिडेंट से ज्यादा ताकतवर मनसब उसके पास है। यानी उनके पास तीनों सेना की कमान रहती है। अगर वह पावरफुल बना तो प्रधानमंत्री के खिलाफ वह रिवोल्ट कर सकता है, बगावत कर सकता है। इसमें ताकतवर मनसब पर दाढ़ी पगड़ी वाला फाइज होता है। बैंक का मैनेजर, प्रोबेशनरी ऑफिसर, वो दाढ़ी पगड़ी के साथ बन रहा है। यहाँ तक कि बैंक का मैनेजर के अलावा रेलवे का मैनेजर, वो साहब दाढ़ी पगड़ी के साथ सिख का बच्चा बन रहा है। तो वहाँ कहाँ स्कूल में पहरा बैठा नहीं, स्कूल में दाढ़ी लेके नहीं आएगा। चूंकि सिखों ने मनवा लिया है कि दाढ़ी मेरे मजहब का हिस्सा है, पगड़ी मेरे लिए कंपलसरी है, इसलिए उन्होंने ख्वाहिशात और फिल्मी कल्चर को घर में दाखिल होने नहीं दिया। उन्होंने कहा मेरा लिबास जो भी हो दाढ़ी पगड़ी साथ रहेगी। तो अब दिल्ली के केंद्रीय विद्यालय में दाढ़ी पगड़ी के साथ उसके बच्चे पढ़ रहे हैं, कनाडा के स्कूल में दाढ़ी पगड़ी के साथ उसके बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि हिंदुस्तान की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में दाढ़ी पगड़ी के साथ उसके बच्चे पढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट के नजदीक भी उनको सम्मान है कि किसी भी पोस्ट में वो जा सकता है अगर उनके पास मेरिट और काबिलियत मौजूद है। मगर मेरे बच्चे को आतंकवादी क्यों बोला जाता है? मेरे बच्चे के पास मेरी बहनें, मेरी बेटियां क्यों नहीं उसके निकाह में आ रही है? हीरो साइकिल का मैनेजर दाढ़ी पगड़ी वाला, पंजाब की खूबसूरत बेटियां उसी दाढ़ी जंगल वाले शौहर का इस्तेमाल करती है, उसी के निकाह में वो जाती है। वो अभी IAS ऑफिसर है पंजाब की बेटियां, वो कहां कहती है दाढ़ी वाला नहीं चाहिए, जंगल लग रहा है, पगड़ी वाला नहीं चाहिए, 18 साल का जवान 80 साल का बूढ़ा लग रहा है। नहीं।